So this is the process for filling the online examination form for the first year students. So you have to open the website and just click on the examination portal and you will find that page regular students here. Just open the page. So you will get that page. First of all, you have to register there as a regular student, new registration. So after the detail you have filled, student name, father's name, mother's name, date of birth, gender, 10-digit mobile number and your email ID. This email ID will be your actually ID and that mobile number is always used to generate the password, and you will get the SMS on the same number that what is your ID and what is your password for the same. So after you will accept the I agree to accept all terms and conditions registered, an SMS will be delivered to your registered mobile number for the email ID and password. Like I have just received a student. So first page you will find the student personal detail. Here you will actually that student name, whenever you have registered yourself, that will appear student name, father's name, mother's name, spouse name आपको नहीं भरना है कोई भी, left it, date of birth जो आपने भरी थी registration time के according, gender male female, marital status single, married, whatever is applicable, email ID will be the same as per you have done the registration. Then you have to select your caste, general, ST, SC, OBC, whatever it is. Residence area, when you are from the rural area, then you have to select it rural, or you are living in a city, then you have to select the urban. Mobile number, 10-digit mobile number. Aadhaar card number, that is not mandatory. If you want to write, then it is no issue. Column number 13, left it, इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है, left it blank. Then religion, Hindu, Sikh, Muslim, whatever it is, you have to write. You have to just select it. You don't need to write it. It's already given the option. Then you have to write the full address, whatever your address is. That's your home address, your state, your district, city, tehsil, pin code. You must be there, and the mobile number. Here you have to provide the same mobile number which you have to which you have given actually at the time of registration. Then if you have the same permanent address for the corresponding address, जहाँ पे आपको correspond किया जा सके, आप मिल सके, then just click here. ये अपने आप copy हो जाएगा, आपको दोबारा लिखने की नीड नहीं पड़ेगी. यहाँ पर आपका है अब photo signature thumb impression. Photo must be passport size, less than 20 KB. Signature must be there. जो आप signature करते हैं as usual, वो भी 20 KB से less होना चाहिए. And the thumb impression left for the girls and right for the boys. ये भी आपका 20 KB से लेस होना चाहिए और JPG इमेज होनी चाहिए. JPG इमेज ओनली ये एक्सेप्ट करेगा, इसके अलावा कोई और फॉर्मेट एक्सेप्ट नहीं करेगा. यहाँ पे लिखा भी हुआ है काइंडली अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर्स इन JPEG और JPG फॉर्मेट ओनली. ये आप जब भी स्कैनिंग कराएंगे बाहर से साइबर कैफे से या खुद करेंगे, उसमें फॉर्मेट आता है कि आपको किस फॉर्मेट में उसको सेव करना है. तो ओनली एक्सेप्ट दैट फॉर्मेट, JPEG और JPG फॉर्मेट ओनली. ये आपका इसमें एक्सेप्टेड फॉर्मेट है, इसके अलावा कोई भी फॉर्मेट इसमें एक्सेप्ट नहीं होगा. इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर सेव पर्सनल डिटेल करेंगे. ये सभी डिटेल भरने के बाद, क्रॉस चेक करने के बाद, देन गो थ्रू द डिटेल्स केयरफुली कि आपने सभी ठीक भरा है. जो कॉलम आपको बताया गया था लेफ्ट करने का, 13 नंबर कॉलम और 4, अगर कोई मैरिड है तो स्पाउस नेम लिख सकता है. स्पाउस नेम मतलब हस्बैंड या वाइफ नेम लिख सकता है. अनमैरिड हैं तो उसको आप ब्लैंक छोड़ेंगे और मैरिटल स्टेटस में यहाँ पे सिंगल या मैरिड लिख सकते हैं. कॉलम नंबर 13, डोंट नीड एनीथिंग, आपको कुछ नहीं लिखना, डोंट राइट एनीथिंग हियर. उसके बाद सभी क्रॉस चेक करने के बाद जैसे जैसे आप फोटो अपलोड करेंगे वहां पे शो करेगा कि आपने फोटो अपलोड किया है, वो किस एंगल से, किस सिचुएशन से आपका अपलोड हुआ है. उसको पोर्ट्रेट मोड में स्कैन करें कि सीधे तौर पर देखा जा सके, इमेज व्यू. सिग्नेचर आप इसमें लैंडस्केप व्यू आएगा और थंब इंप्रेशन, आपका थंब इंप्रेशन वो भी लैंडस्केप व्यू आएगा. मतलब पोर्ट्रेट होता है एक स्टैंडिंग पोजीशन में और लैंडस्केप होता है आपका स्लाइटली इसमें जो आप कह सकते हैं कि लैंडस्केप टाइप व्यू में होता है. तो वो आप इसमें स्कैन करेंगे. उसके बाद आप पर्सनल डिटेल्स को सेव कर देंगे. वो आपको दिखाएगा कि आपकी पर्सनल डिटेल्स सेव हो चुकी हैं.
नेक्स्ट पेज आप खोलेंगे, इसमें एग्जामिनेशन डिटेल का पेज है आपका, इट विल रिफ्लेक्ट लाइक दैट। इसमें आपका आएगा स्टेट टू विच बिलोंग, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, स्टेट आ जाएगा आपका, जैसे आई एम सेलेक्टिंग द स्टेट हरियाणा, किसी का दिल्ली है, कोई और स्टेट है, वट एवर इट इज एप्लीकेबल यू हैव टू सिलेक्ट। कॉलेज नेम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच आई वांट टू शो, कॉलेज नेम। यहाँ पर आप गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ ओनली यू हैव टू सर्च, Geeta Institute of Law. It is just given under the Geeta Institute of Education Currents. That you have to select only Geeta Institute of Law 1937 while filling the college departmental name. आपको लिखना नहीं है, already given है, just select it Geeta Institute of Law 1937। उसके बाद KU के रजिस्ट्रेशन नंबर put it blank, इसको blank छोड़ेंगे, अभी आपको अलाउड नहीं हुआ है, आपको अलाउड ये बाद में होगा जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होके वहां पे सबमिट हो जाएंगे और वहां पे रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलेगा। उसके बाद आपको हम बता देंगे कि आपको इसमें लिखना क्या है। कॉलेज रोल नंबर आई ऑलरेडी सेंड यू ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप, आपको एक स्कैन पीडीएफ कॉपी या स्कैन कॉपी मिलेगी जिसमें आपको व्हाट्सएप सॉरी आपके कॉलेज रोल नंबर मिलेंगे। तो सर्च योर नेम एंड राइट द कॉलेज रोल नंबर एज पर द डिटेल। एग्जामिनेशन रोल नंबर कुछ नहीं है, टू बी अलॉटेड बाय द यूनिवर्सिटी, ये आप भर नहीं सकते, ये लॉक्ड है। उसके बाद कैटेगरी रेगुलर, रेगुलर मोड में आप एग्जाम दे रहे हैं, ये भी लॉक्ड है, इसमें भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे। अब आपको आता है कॉलम नंबर 10 एनुअल और सेमेस्टर, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है सेमेस्टर एग्जामिनेशन। आफ्टर दैट 11 कॉलम में क्लास वट एवर इज एप्लीकेबल, बीए, बीबीए, एलएलबी, जैसे आप बीए में हैं तो बीए सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। एग्जामिनेशन टाइप कॉलम नंबर 12 दैट इज फुल पेपर्स, अभी आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आप फुल पेपर्स देंगे, आगे मान लो कोई रीपेयर वगैरह का आता है तो वो भी सेम प्रोसीजर चलेगा, उसका मैं आपको बाद में बताऊंगा डेमो। फुल पेपर्स आएगा, उसके बाद आपका आएगा सेमेस्टर फर्स्ट। सेमेस्टर फर्स्ट जैसे करेंगे आपकी सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी ओपन, यहाँ पे 6 सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, पेपर कोड 101, 2, 3, 4, 5, 6, सभी को आपने सिलेक्ट करना है, यहाँ से टिक मार्क करना है सभी को 1 by 1, 101, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। यहाँ पर जब आप सारे के सारे सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद एक बार वेरीफाई कीजिए आपने कोई ऐसी चीज तो नहीं ब्लैंक छोड़ दी जिससे कोई प्रॉब्लम हो। केयू के रजिस्ट्रेशन नंबर टू बी अलॉटेड लेटर, कैटेगरी आपको नहीं भरनी है, एग्जामिनेशन रोल नंबर आपको कोई फिलअप नहीं करना है, ठीक है, ये आपके आ जाएंगे। उसके बाद आपको करना है यहाँ पे सेव एप्लीकेशन, ये कॉलम आपको नहीं भरना, नेम ऑफ एग्जाम ये लॉक्ड है, ये काम नहीं करेगा, इस पे भी कोई टिक नहीं करेगा, पुट इट ब्लैंक। 16 नंबर कॉलम, यहाँ पे सेव एप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो है सर्वर में सेव हो जाएगी। उसके बाद आपको जाना है एप्लीकेशन स्टेटस, अभी जैसे इन्होंने फॉर्म नहीं भरा हुआ तो यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस कुछ नहीं दिखा रहा। आप जब यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस दिखाएगा आपको पे फीस पे नहीं जाना है, आपको फीस आपके कॉलेज की आईडी से सबमिट करनी है, ईआरपी से। यहाँ पे क्लास नेम, ईयर, सेमेस्टर दिखाएगा, सेशन दिखाएगा, एग्जाम टाइप, एंट्री डेट, पेमेंट स्टेटस। यहाँ पर एक और स्टेटस दिखाएगा सबमिट का, और यहाँ पर व्यू और पीडीएफ दिखाएगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। जिसका अभी फॉर्म 9 दिखा रहा है मैं उसी को भी बता रहा हूं दोबारा आपको।